Good evening to all of you once again. Yeah. So how was your paper? Yesterday's paper? All the questions attempted or not? Very easy. Okay, super duper easy. Very good. Attempted. Okay, okay. Great, great, great. Nice. Okay. So now let's move ahead. We will begin with new topic. Okay, so just tell me Saramayaha Shilam. This lesson is actually omitted, as you know, due to the COVID-19 reduced syllabus. But any of you have this lesson in your school test or something like that? No, Pakka? Anybody? Yeah, yeah, it is actually omitted. No, everyone are saying no, right? Great, great. So we will not do this. I think Paresh have one last verse which is actually omitted. I think in this school you have this verse, right, Paresh? This seventh verse from Kavya Shastra Vinod. You want this verse, correct? Okay. So for Paresh and for JB Nagar students, let's do this one shloka, and those who don't have this shloka can just listen to it. It is a very good thought. So we will just discuss this shloka and then we'll begin with the new lesson today. So keep your writing material ready. We have to write down some sandhis also from this seventh shlok. Okay. Yes. So we will read the shlok first. Yad vaktram muhurikshase na dhani nam brushe na chatun mrusha. Many new words. ओके एंड ये वर्ड्स को प्लीज 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 हिंदी मराठी के साथ कनेक्ट मत करना, बहुत ही गलत मीनिंग निकलता है. Okay, we have to understand it newly from the point of view of Sanskrit literature. Then next, Naisham Garva Vachah Shrunoshi Nachatan Pratyashaya Dhavasi Kale Balatrunani Khadasi Param Nidrasi Nidragame Tan Me Bruhi Kuranga Kutra Bhavata Kim Naam Taptan Tapah. Now यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड है यद वक्त्रम, इन दैट देयर इज संधि. ओके, सो संधि को कैसे स्प्लिट करना है, हमारा समय वाला संधि करना है यहाँ पे. द चेंजेस टू त. सो क्विकली राइट डाउन द संधि विग्रह इज यत प्लस वक्रम. वक्त्रम इन फैक्ट, नॉट वक्रम. यत प्लस वक्त्रम. क के साथ त्र को ज्वाइन करना है लाइक दिस. Okay, so yat plus vakram. Quickly write down. Now yat तो आपको पता है यूज होते रहता है. यद एंड तत्, it is a form of sarvanam. But what about vaktram? This is a new word. Vaktram means mouth or face, you can say. Okay, here the meaning of vaktram is mouth. Okay, then vaktram. अभी तक हमने मुखम वर्ड सुना हुआ है, वही उसका ही समानार्थ है वक्त्रम. Now again one more sandhi and also new words for us. Muhurikshase. In this, ra changes to visarga. So muhuhu plus ikshase. Muhuhu plus ikshase.
ओके, मुहुहु प्लस ईक्षसे, मुहु के बाद पुट टू विसर्ग, I mean 2 dots. Am I audible? I said muhuhu plus ikshase is the muhuhu plus ikshase is the sandhi. Next sandhi, ra changes to visarga. Okay, now what is the meaning of muhuhu? So the meaning of muhuhu is again and again. Again and again. Okay, next word जो है ikshase means to see. Ikshase means to see, have to see. Na means not. Na means not. Dhani naam means rich person, of rich people. Okay, of the rich or of rich people. बहुवचन है. Then brushe means speak. ब्रू धातु है जिसका मीनिंग होता है स्पीकिंग. So brushe means to speak. To speak. No means not. ये जो नया वर्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है चाटुन, उसका मीनिंग है फ्लैटर. चाटुन मीन्स फ्लैटर. And mrusha, again a new word, means false, झूठ. False, झूठ. देखो ना, फर्स्ट लाइन के वो मैं एक बार फिर से मीनिंग रिपीट करी हूँ, फिर हमें उनको कोरिलेट करना है. यद वक्त्रम में वक्त्रम मीन्स फेस, मुहुहु मीन्स अगेन एंड अगेन, इक्षसे मीन्स टू सी, न मीन्स नॉट, धनिनाम मीन्स ऑफ रिच पीपल, ब्रूशे मीन्स टू स्पीक, न मीन्स नॉट, चाटुन मीन्स फ्लैटर, and mrusha means false. So basically here the theme is poet is addressing to a deer. Poet is addressing to a deer and poet is saying, oh dear, first line by the poet is imagining that deer is so lucky. Deer is so lucky that deer don't have to see the face of rich person again and again. ये जो डियर होता है, कितनी उसकी लाइफ अच्छी है, बहुत ही सुकून से जीता है, ऐसे पोएट को लग रहा है. तो क्यों सुकून से जीता है, उसके कुछ रीजनिंग यहाँ पे पोएट हमें दे रहा है. पोएट बता रहा है कि सबसे पहले इसको रिच पीपल, बहुत ही श्रीमंत लोग जो होते हैं जिनके पास बहुत पैसे, ऐसे रिच पीपल का फेस बार बार देखना नहीं पड़ता है. ओके, उसको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा रिच बनने की, और इसके लिए जो पीपल रिच है उनसे कभी भी उसको उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है. एंड हेंस दिस डियर इज वेरी लकी अकॉर्डिंग टू पोएट, बिकॉज दैट डियर डू नॉट हैव टू सी द फेस ऑफ रिच अगेन एंड अगेन. सो अभी आपको ध्यान में आ रहा है वो जो वर्ड है इक्षसे, टू सी, मुहुहु अगेन एंड अगेन, एंड वक्त्रम मीन्स फेस, डू नॉट हैव टू सी द फेस अगेन एंड अगेन. और क्या नहीं करना पड़ता है, डू नॉट हैव टू स्पीक फॉल्स और प्लीजिंग वर्ड्स. ओके, डू नॉट हैव टू स्पीक फॉल्स प्लीजिंग वर्ड. चाटुन मीन्स यहाँ पे फ्लैटर, प्लीजिंग वर्ड, स्तुति करना, प्रेजिंग देना. तो उसको फॉल्स प्रेजिंग करने की जरूरत नहीं है डियर को. कभी कभी देखो लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्चुअली हमें पसंद नहीं है, क्योंकि वो बुरा कर रहे हैं हमारे साथ, या फिर उनको हमारे से जेलसी है, they are not behaving good with us, and then also उनके मुंह पे हमें अच्छा अच्छा बिहेव करना पड़ता है कि कैसे आप बहुत अच्छे हो, या फिर कैसे मैं आपको लाइक करती हूँ. दो कि हमारे मन में इतना सिर्फ कुछ रिस्पेक्ट उनके बारे में है नहीं, बट देना पड़ता है. ओके, एंड अभी नहीं, बट जब भी हम आगे जाके ये सब कुछ प्रोफेशंस, अलग अलग प्रोफेशंस में ये फेस करेंगे, देन विल गेट टू नो द थॉट बाय दिस पोएट.
Yeah, basic, yes, Arman, correct. Like basically is employees and the higher employees or the boss, etc. Correct. देन नेक्स्ट मे बी ये जो पोएट हो वो ऐसा ही कोई कॉर्पोरेट का बंदा होगा जिसने ये श्लोक लिखा हुआ है. लेट्स सी आगे देखते हैं और क्या बता रहा है वो. प्लीज मतलब प्लीज कर रहा है इनफैक्ट डियर को, और डियर को बता रहा है कि यार तेरी लाइफ तो बहुत सेट है और मेरी लाइफ कैसे बेकार है, वो यहाँ पे उसको बता रहा है. देन नेक्स्ट नैशाम गर्ववचः. अगेन यहाँ पे संधि आया हुआ है बच्चों, प्लीज राइट डाउन द संधि. न प्लस एशाम, न प्लस एशाम, नैशाम. Okay, garva vachaha. Garva means pride. Vachaha means again words, so words filled with pride. Shrunoshi. Shrunoshi means to listen. No means of course not. क्या बता रहा है मतलब वो अगेन बता रहा है कि ए डियर कितना लकी है तू कि यू डोंट हैव टू लिसन टू देयर वर्ड्स फिल्ड विथ प्राइड. वो जो बॉस लोग है उनके प्राइड से, गर्व से भरे हुए जो वर्ड्स है तुझे सुनना नहीं पड़ता. यू आर सो लकी. देन नेक्स्ट तान प्रत्याशया धावसी. यहाँ पे प्रत्याशया मीन्स विथ ग्रीड. प्रत्याशया विथ ग्रीड. धावसी तो आपको पता है टू रन. तान मतलब उनके पीछे, बिहाइंड देम. आगे पोएट बताता है कि यार डियर यू आर सो लकी, यू नीड नॉट हैव टू रन बिहाइंड देम विथ अ ग्रीड. सैलरी मिलेगी या फिर थोड़ा प्रमोशन मिलेगा, ये जो ग्रीड है इसकी वजह से तुझे उनके पीछे भागना नहीं पड़ता है. जैसे वो बोले वैसे आपको करना नहीं पड़ता है. ऐसे पोएट डियर के साथ बात कर रहा है. ओके आगे चलते हैं. थर्ड लाइन काले बाल तृणानी खादसी. ओके, काले मीन्स टाइम के लिए यूज किया हुआ है. बाल तृणानी मीन्स टेंडर ग्रास. टेंडर ग्रास जो डियर्स को बहुत पसंद है. टेंडर ग्रास. Truna is grass and Bala is tender grass. Khadasi, eat. यहाँ पे पोएट बताता है कि डियर यू ईट टेंडर ग्रास एट प्रॉपर टाइम. ओके, टाइम टू टाइम यू ईट टेंडर ग्रास. निद्रासी निद्रागमे. एंड टाइम टू टाइम you take a sleep when you are sleepy. Nidragame. Nidragame means when you are feeling sleepy and nidrasi you take a sleep. जब भी तुझे स्लीपी फील होता है यू टेक अ स्लीप. कोई तुझे कुछ बोलता नहीं है. बट व्हेन आई फील स्लीपी आई कांट स्लीप इन द ऑफिस बिकॉज आई हैव टू वर्क. आई हैव टू रन बिहाइंड दैट पीपल. आई हैव टू लिसन टू देयर प्राइडफुल वर्ड्स. Then next after that we have again one more sandhi tan mein. Tan mein. Let my explanation complete and then I will answer to your questions. Okay. Tan में is a sandhi. Please write down tat plus में. Tat plus में. No problem. You may drop your questions, queries, mind में जो भी आ रहा है आप drop कर सकते हो chat box में. I will answer to all the question after the explanation. Okay. Last line just. तन में तत् plus में. Okay. में means my. ये तो आपको पता है. अगेन ब्रूही वर्ड आ गया. ब्रूही अभी वहां पे भी हमने ऊपर देखा था ब्रूशे. अभी ब्रूही का मीनिंग तो आपको पता है टेल मी. वही धातु है बस लोट लकार यूज किया हुआ है. टेल मी. ब्रूही टेल मी. कुरंग. कुरंग मीन्स डियर. यहाँ पे मृगह नहीं यूज किया है. कुरंग. ओ डियर टेल मी. तपह मीन्स पेनेंस. पुत्र तो आपको पता है वेर. भवता ये जो है आदरार्थी सर्वनाम यूज किया है रिस्पेक्ट देने के लिए. तपह मीन्स पेनेंस, सैक्रिफाइस या फिर तपश्चर्या.
तो ये लास्ट लाइन में पोएट क्या क्वेश्चन कर रहा है? लास्ट लाइन में पोएट इज आस्किंग that, oh dear, tell me what penance has been performed by you due to which you are getting all this luxurious life. ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी तपश्चर्या, सैक्रिफाइस, यज्ञ या फिर बहुत अच्छा काम तूने करके रखा है कि तुझे इतनी प्यारी सी लाइफ मिली है? टेल मी. ओके. नाम मीन्स कौन से नाम का, तप्तम तप, तप्तम मीन्स एकदम घोर तपश्चर्या, वेरी डिफिकल्ट पेनेंस. तपह मीन्स पेनेंस, तपश्चर्या. सो नाउ पूरे वर्स का मीनिंग कुछ इस तरह से होता है. Poet is addressing to the deer, oh dear, tell me what penance has been performed by you because of which you do not have to see the face of rich again and again, nor you have to speak the false, pleasing words in front of them. Even you do not have to listen to their words filled with pride. Also, you do not have to run behind them with a greed of something. How lucky you are, you eat tender grass at proper time and you can sleep when you are sleepy. Okay, so this type of shlok is known as Anyokti. Poet is here addressing to deer. Okay, शब्दशः जब हम मीनिंग देखते हैं then poet is addressing to deer, but actually it is for अन्य, यानी कि for others also. Just by taking an example of deer, poet is actually asking his own queries on behalf of all the persons, all the people who are facing such problems in life. Are you getting me now? So Harshit, answer to your question that why deer only? Why not any other animal? Is deer his favorite of poet? No. Deer is just taken as an example. Okay. And Anyokti means what? Poet is facing all these problems, but actually poet is also talking on behalf of other people who are facing such problems in life. Poet is imagining that deer is very deer have very peaceful life, no tensions, no worries at all, and hence he is comparing the life with his own life. इसको मराठी में आपने सीखा रहेगा, रूपक अलंकार भी कहते हैं, रूपक अलंकार. सो रूपक मीन्स यहाँ पे जो डियर है वो एज ए एग्जाम्पल रूपक यूज किया हुआ है, बट एक्चुअली द श्लोक इज रिलेटेड टू ऑल द men. Okay, clear? Paresh, was the explanation helpful for you? Yeah, that only I'm telling ना, why only deer, ये क्वेश्चन ही नहीं है, because it is an example. Poet is free to take any animal. अभी ये पोएट को लगा कि उसको डियर के साथ कंपेयर करना है. डियर का लाइफ इज वेरी सिंपल, जस्ट ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, एंड हेंस पोएट कंपेयर्ड विथ डियर. Yeah. Okay, great. Then we will discuss some question answers based on this shloka. Shlok number 7. Rikta snanam purayata त्वम धनीनाम डैश मुहुहु न इक्षसे. अभी आपको मीनिंग सबके पता है. त्वम मीन्स यू, धनीनाम ऑफ रिच पीपल, मुहुहु अगेन एंड अगेन. ये न्यू वर्ड्स जरा बार बार रिवाइज करो. मुहुहु अगेन एंड अगेन, न इक्षसे नॉट टू सी.
You do not have to see the face of rich people again and again. So which word is missing? Face. So find out the word for face from your shlok. Line number 1. Quickly tell me. Very good. Yad Vaktram में से only Vaktram you have to write down here. Only Vaktram. Please use the sandhis. Only Vaktram. Next, Tvam Rusha Chatun न dash. Second one, Tvam Rusha Chatun न dash. अभी आपको पता है Tvam means you. Rusha का meaning हमने देख लिया है false. Chatun means flatter, pleasing words. Yes, very good. यहाँ पे क्या मिसिंग है? क्रियापद मिसिंग है, तो हम लिखेंगे ब्रूशे. Yes, correct. Then next, त्वम एशाम dash न शृणोषि. त्वम एशाम dash न शृणोषि. शृणोषि आपको पता है टू लिसन. एशाम ऑफ देम डैश क्या नहीं सुनना है? गर्ववचः. वेरी गुड अरमान. Yes, words filled with pride. Then त्वम तान प्रति dash न धावसी. तान प्रति उनकी तरफ, उनके पीछे पीछे. behind them धावसी run. You need not have to run behind them for or with dash. greed. करेक्ट. तो greed के लिए क्या वर्ड है? with greed के लिए क्या वर्ड देखा था हमने? वेरी गुड, सुपर. प्रत्याशया न धावसी. यस, करेक्ट. प्रत्याशया. श्रुति, वेरी गुड. यस, तन्वी, अरमान, करेक्ट. देन नेक्स्ट, त्वम काले बालतृणानि. बालतृणानि टेंडर ग्रास at a proper time. Yes, the kriyapad is missing, so we will use kriyapad khadasi. Very good, Shruti. So tvam kale balatrunani khadasi. Then tvam dash nidrasi. You sleep when you are sleepy. So for sleepy we have new word nidragame. Very good. He kuranga tad dash bruhi. Second last one. He kuranga tad dash bruhi. यस, में. सिर्फ में यहाँ पे यूज करना है. तन में ब्रूही. हे कुरंग, यू टेल मी के लिए में. तन में ब्रूही. सो में इज द आंसर. भवता किम नाम तपः. भवता किम नाम तपः. तप्तन तपः. वेरी गुड. सो तप्तन तपः. भवता किम नाम तप्तन तपः. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न निर्माणम कुरुत. त्वम धनीनाम वक्त्रम मुहुः न इक्षसे. अभी आपको मीनिंग पता है. क्विकली टेल मी द आंसर. धनीनाम वक्त्रम इज हाईलाइटेड. किम. वेरी गुड. आप वक्त्रम देखना है. धनीनाम वक्त्रम है, बट फिर भी लास्ट वर्ड को ऑब्जर्व करो. वक्त्रम, तो आंसर किम होगा. देन त्वम निद्रागमे निद्रासी. आपको पता है निद्रागमे मीन्स व्हेन स्लीपी. तो व्हेन स्लीपी, व्हेन क्या इंडिकेट करता है हमें? टाइम. तो टाइम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इफ द आंसर इज टाइम, वी यूज वर्ड कदा. फैंटास्टिक. सो त्वम कदा निद्रासी. किम एंड कदा. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन. समानार्थक शब्दांत चिनुत लिखत. वदनम. वदनम चिनुत है. चिनुत. फाइंड आउट फ्रॉम द श्लोका. वदनम मीन्स फेस. सो फ्रॉम श्लोक वी हैव वर्ड, न्यू वर्ड फॉर फेसेस. वेरी गुड. वक्त्रम. करेक्ट. यू आर आंसरिंग एब्सोल्युटली राइट. Okay, what is a new word for false? Asatyam. False, asatyam. Can you guess? Just refer the shloka. False, asatyam.
Very good. Riya, correct. Mrusha. Yes, Shruti, little bit correction is required. The answer is Mrusha. Yes, Riya Arman, very good. Yes, Shruti, correct. Okay, then next, Shashpam. Shashpam. Shashpam means grass. You have seen this word in your second poem, I think, Avyay Mala. Bhuktva Trunani Shushkani. Yes, तो शशपम मीन्स यहाँ पे तृणम. शशपम है तो तृणानी नहीं लिखना है. मॉडिफाई इट एंड राइट डाउन तृणम. यस, तन्वी अरमान, वेरी गुड. देन नेक्स्ट स्वापह. स्वापह इज स्लीप. yes, don't use word nidrasi. Nidra. Yes, many of you are answering correct. ये हमने फर्स्ट लेसन में भी देखा था बीरबल के. Okay, निद्रा. निद्रा. Yes, शयनम is also correct. रिया, very good. but यहाँ पे चिनुत है, so you have to write down word निद्रा. मृगः. what is the word for deer used in श्लोका? मृगः के लिए कुरंगः. very good. कुरंगः. then next पश्यसि, to see. पश्यसि. इसके लिए भी हमने आज एक नया वर्ब देखा हुआ है. क्या है वो? यस, ईक्षसे. ईक्षसे. पश्यसि, ईक्षसे. ये आत्मनेय पद है, इसीलिए एंडिंग में से आया हुआ है. एंड पश्यसि परस्मय पद है, इसलिए सी आया हुआ है. परस्मय पद एंड आत्मनेय पद ऑफ प्रेजेंट टेंस. Okay, last question to all of you. Shlokat shashthyanta padani pade words from shlok of Shashti Vibhakti. Very good. Dhani naam. Correct. And Esham. Okay. Or very good. That's it. Yeah. So here we have completed Kavya Shastra Vinodaha also. Those who want 7 shloka can revise it. Dhani naam Esham. Correct, correct. Okay. How we'll move ahead? Okay, now we will begin our last lesson, 15th lesson. That is Manorajyasya Phalam. Have you started this topic Visheshan Vistarah? Not yet, right? Yeah, great. No problem. We will just complete this our last lesson and then we'll again focus on grammar topics. Yes, Riya, definitely we will do samas after this. Okay, don't worry. Till then, just by heart the tables because tables are highly important for samas. समास हम जो सीखने वाले हैं, षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टेबल्स. सो देव वन माला एंड 9th स्टैंडर्ड में जो हमने भानु उकारांत जितने भी टेबल्स सीखे हुए हैं या फिर अभी भी जितने टेबल्स हमने सीखे, प्लीज वो टेबल्स बाय हार्ट करना प्लीज. ओके, बिकॉज विदाउट टेबल्स you cannot understand and you cannot find out the answers for the samas which we will do in the next lecture.
So till the next lecture, you should revise all the tables from 8th standard and 9th standard. Keep in mind. Or if you are facing any doubt for tables, then please tell me in the next lecture. We will just revise it. The difficult ones are not Deva Vanamala. इजी टेबल्स नहीं, जो डिफिकल्ट आपको लग रहे हैं या फिर उसके जैसे सिमिलर टेबल्स आप लिख नहीं पा रहे हो, देन just let me know. We will once revise it and then we'll begin with the samas, because samas topic requires a lot of practice for tables first. No, not sarvanam tables, namani tables. Noun ke tables are highly important for samas. Asmad Yushmad, you can do it later, no problem, but just do the tables of nouns first. अकारांत, आकारांत, उकारांत एंड जितने भी अभी तक आपने नाउन्स सीखे हैं वो सभी टेबल्स. Yes, from देव, from 8th standard till 9th standard last table आपने जो भाषा सूत्रम में सीखा है वहां तक सब कुछ. पयस I think was the last table, right? Yeah. So till पयस, from देव till पयस. So 8th standard में भी I think आपने देव वनमाला, कविमती, वारी, नदी इतने नाउन टेबल सीखे. देन 9th में अगेन आपने स्टार्टिंग में उकारांत, भानु, धेनु, मधु ये सब सीखा. एंड अभी आपने सकारांत, तकारांत, मरुत एंड पयस वर्ड सीखे. तो इतना सब कुछ आपका बाय हार्ट होना चाहिए. आपको वो वर्ड्स दूसरे टेबल्स में भी यूज करना आना चाहिए. ऐसे नहीं कि मुझे देव आता है बट देव के जैसे बाकी टेबल्स नहीं आते, then it is not fine. You have to practice more. Okay, let it be. Just let's focus on the 15th lesson, last lesson, Manorajyasya Phalam. So what is the meaning of phalam? Phalam, fruit. Correct, fruit. यहाँ पे भी fruit, but यहाँ पे result, ये meaning most appropriate है. Okay, fruit, result. Then मनोराज्यस्य, इसमें again दो words है, मन and राज्य. बट ये वर्ड का मीनिंग क्या है वो हम अभी रिवील नहीं करेंगे, वरना स्टोरी का मजा चला जाएगा. मनोराज्य या मनोराज्य का फल क्या होता है, ये हमें स्टोरी में इटसेल्फ फाइंड आउट करना है बाय अंडरस्टैंडिंग द वेरी यू कैन से ह्यूमरस स्टोरी. मजा आने वाला है बहुत, स्टोरी में हंसी भी आने वाली है. एंड दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम अगेन अ वेल नोन बुक, नीति शतकम, sorry, well-known book, that is Panchatantram. I'm reading your chats meanwhile, just a minute. Yes, Nila, right. This is the last lesson, na? So how can it be there in unit test? Of course, it will be there for semester, but we have completed all the lessons and poems. So this is our last chapter. Okay, Nila? If you don't know, we have completed all the poems and chapters except this 15th lesson. So we will complete it. Yeah, Arman, little bit correct answer. Yeah, those who have Swagatam Tapodhanayaha, we will take it. Or if you don't have it, we will omit it. Because Swagatam Tapodhanaya, again, it is omitted. So if you have in your school, it is taught, then please let me know in the next lecture. But now just throw your all the doubts, queries away from your mind and just focus on this lesson, Manorajyasya Phalam. Okay? Yeah, so this is a story, a very nice story taken from पंचतंत्रम. एंड एज यू नो पंचतंत्र ये जो नाम दिया हुआ है बहुत ही फेमस बुक है. बहुत सारी स्टोरीज हमने बचपन से देखी हुई है इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इन ऑल द लैंग्वेजेस अवेलेबल. कार्टूनिश भी इसके फॉर्म्स, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है. सो पंचतंत्र नाम ही दिया हुआ है, नाम से ही पता चलता है. बुक में 5 तंत्र, 5 टेक्निक्स आर डिस्क्राइब्ड थ्रू द स्टोरीज, नॉट प्रवचन.
कोई भी प्रवचन नहीं दिया हुआ है ये बुक में, एंड हेंस दिस बुक इज वेरी फेमस. फेबल्स यानी कि प्राणी कथा यूज कर कर यहाँ पे 5 टेक्निक्स डिस्क्राइब की गई है. सो व्हाट आर द 5 टेक्निक्स? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारकम. These are the 5 techniques described in पंचतंत्र. नाम बाय हार्ट कर लो, इंट्रोडक्शन में हमें यूज करना है. एंड ये 5 टेक्निक में से कौन सी टेक्निक हम यहाँ पे देखने वाले हैं ये स्टोरी में? सो इट इज अपरीक्षित कारकम. Okay, this story is based on the technique aparikshita karakam. Now what is the meaning of aparikshita karakam? Effect of actions that has been done without a proper thinking. Okay, this aparikshita karakam section deals with effects of actions done without proper thinking. बिना सोचे समझे हम जब कोई एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, तब उसका फल, उसके इफेक्ट्स, उसके परिणाम कैसे कैसे होते हैं, वो हमें ये स्टोरी से पता चलने वाला है. तो ये जो बंदा यहाँ पे सो रहा है इन पिक्चर, वो भी कुछ ऐसे ही काम परफॉर्म करने वाला है. कुछ ऐसे ही उसके भी सपने हैं जैसे आपके होते हैं, ड्रीम्स. Many big goals, like that same big dreams, big goals he have. And to achieve these goals, what actions are taken by this uh, character or the hero of the story? We will see it and finally we'll decide it कि क्या सच्ची में ये जिसने ये जो स्टोरी में कैरेक्टर है उसने सही परफॉर्म किया है, उसके स्टेप्स करेक्ट थे या नहीं थे, और अगर नहीं थे तो ऐसा क्यों हुआ. all these things we will get answers to all these things in this story. ओके, एंड अभी आप स्टोरी एक बार सुन लो, फिर आप कनेक्ट कर सकते हो. ऐसी कोई स्टोरी आपको पता है कि नहीं? maybe many of you are started thinking about the story. Very good. तो ये स्टोरी आपको लगेगा कि सुनी हुई है, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग नाम से हम सुनते हैं. देखते हैं हमारे स्टोरी में क्या क्या कैरेक्टर है. पहले आज हम जस्ट रीड करेंगे स्टोरी को इन संस्कृत. कस्मिंश्चित् नगरे कश्चित् स्वभावकृपणः नाम कः अपि भिक्षुकः प्रतिवसति स्म. तेन भिक्षया प्राप्तेन सक्तुपिष्ठेन कलशः सम्पूरितः. तं च घटं नागदन्ते रज्वा बद्ध्वा तस्य अधस्तात् घटं प्रसार्य सततं तद्विषये चिन्तयन् सः सुप्तः. सः चिन्तयत् यत् परिपूर्णः अयं घटः तावत् सक्तुपिष्टेन वर्तते. यदि दुर्भिक्षं भवति तर्हि अस्य विक्रयणेन रूप्यकाणां 100 प्राप्स्यामि. ततस्तेन अहम् अजाद्वयं क्रेष्यामि. ततः षण्मासिकप्रसववशात् ताभ्यां यूथः भविष्यति. ततः अजाभिः प्रभूताः धेनुः ग्रहीष्यामि. धेनुभिः महिषिः, महिषिभिः वडवाः, वडवा प्रसवतः प्रभूताः अश्वाः भविष्यन्ति. तेषां विक्रयणात् प्रभूतं सुवर्णं प्राप्स्यामि. सुवर्णेन चतुश्शालां गृहं सम्पत्स्यते. ततः कश्चित् धनिकः प्राप्तवयस्कां रूपाढ्यां कन्यां मह्यं दास्यति. आवयोः पुत्रः भविष्यति. तस्य अहं सोमशर्मेति नाम करिष्यामि. ततः सः जानुचलनयोग्यः भविष्यति. एकदा सोमशर्मा मां दृष्ट्वा मत्समीपम् आगमिष्यति. ततः अहं कोपाविष्टः अभिधास्यामि भार्यां गृहाण तद् बालकम् इति. सा अपि मम वचनं न श्रोष्यति.
तावत् काले कश्चन कुक्कुरः तत्र आगमिष्यति। सोमशर्मा तस्मात् भीतः भविष्यति। ततः अहं समुत्थाय लगुडेन तं कुक्कुरं ताडयिष्यामि। एवं स्वप्नमग्नः ध्यानस्थितः सः तथैव लगुडप्रहारम् अकरोत्। तेन लगुडप्रहारेण सक्तुपिष्टेन परिपूर्णः सः घटः भग्नः अभवत्। स्वभावकृपणः सः पाण्डुरताम् अगच्छत्। अतः ब्रवीमि अनागतवतीं चिन्ताम् असम्भाव्यां करोति यः स एव पाण्डुरः शेते सोमशर्मा पिता इति। सोमशर्मा पिता यथा। Yes, something about Sattu is talking. Yes, it is there in this lesson. Yeah, right. This is a story of daydreamer. Very good. और क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप संस्कृत? जस्ट by listening the संस्कृत. सत्तू का पीठ या सत्तू का आटा जो है उसके बारे में कुछ तो है. वेरी गुड. और क्या क्या ओपिनियंस है? प्लीज ड्रॉप योर ओपिनियंस इन चैट बॉक्स. Yes, keep answering. Yeah, right. Many animals are used in this story. Very good. देखेंगे animals के नाम क्या क्या है. Goats है. Okay. You have observed that goat का नाम आया हुआ है. Okay. अच्छा, श्रुति सेलिंग की उसको एक पुत्र भी है, सन. सन का नाम सोम शर्मा है. वेरी गुड. यू हैव ऑब्जर्व्ड करेक्टली. ओके, समथिंग अबाउट गोल्ड इज ऑल्सो देयर. वेरी गुड तीर्थ. गाय भी है. ओके, काउज आर देयर. ओके, अरमान दिया करेक्ट. Okay, he is not a hard worker. He is only a dream worker, said by Arman. Okay, Arman. Okay, वो शादी भी करने वाला है. Okay, great. Something about dog is also there. Tirtha is saying. Okay, Tirtha, right. Dhanika is also there. Yeah, correct, correct. Great, students. Hope you have observed all the Sanskrit words and you are trying to understand that words. Great. That's great. I must appreciate it. Now we'll just begin with one, two lines today. So first line, कस्मिंश्चित् नगरे कश्चित् स्वभावकृपणः नामकोऽपि भिक्षुकः प्रतिवसति स्म. कस्मिंश्चित् नगरे, in a certain city, कोई तो एक नगर में, कश्चित्, again a certain, स्वभावकृपणः is the name of that character. स्वभावकृपणः, नाम means name, उसका नाम है. कः अपि, a certain, भिक्षुकः. भिक्षुकः मीन्स याचक, सीकर. बेगर मत बोलना उसको, सीकर, याचना करने वाला. प्रतिवसति स्म, यूज्ड टू लिव. यूज्ड टू लिव इन सर्टेन नगर, in a certain city he used to live, and he is seeker named Swabhava Krupanah. Now Krupanah means कंजूस and Swabhava means by behavior. So the one who is miser by the behavior और कंजूस है, उसको नाम दिया हुआ है स्वभाव कृपण. सो कैरेक्टर्स का नेमिंग करना भी पंचतंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है. The naming of the characters, title of the characters, work of the character, behavior of the character, everything is carefully written in पंचतंत्र. ऐसे ही मन में आया तो रमेश, सुरेश, राजू, नीलू ऐसे नाम नहीं रख दिए. So all the names given to the characters have some meaning
related to their behavior. So यहाँ पे भी स्वभाव कृपणः, the one who is कंजूस miser by the behavior, and hence उसका नाम भी रखा हुआ है स्वभाव कृपणः. तेन by him, भिक्षया, भिक्षया means yes by the arms, भिक्षा मांगते हुए. प्राप्तेन obtain, सक्तु पिष्टेन, सत्तू का आटा, फ्लोर ऑफ सत्तू. ओके. कलशः मीन्स पॉट, यहाँ पे हमें पिक्चर में दिख रहा है द पॉट. संपूरितः मीन्स फिल्ड, he filled one pot with a आटा of सत्तू which he obtained from the arms. भिक्षा से मांगे हुए सत्तू के आटे से उसने एक बड़ा सा पॉट जो है वो पूरी तरह से भर दिया है. ओके. तम उसने, घटम, घटम मीन्स दैट पॉट, नागदंते रज्वा बद्धवा, बद्धवा मीन्स बांधना, टाइड, रज्वा मीन्स नेल, खिड़ा. ओके. और अ हुक यू कैन से, नागदंते to the hook or hang. So he hanged that pot with the help of rope. Rajva is rope, by a rope. On nagadanta, nagadanta means on hook. Okay, on the hook he hanged that pot with the help of rope. Badhva means बांधलेला आहे. Tied. And tasya adhastat, adhastat means below that pot. Tasya means that pot. Katam, katam means new word. Katam is mat. Prasarya, spread. So spreading a mat exactly below the pot, spreading a mat exactly below the pot, सततम, all the time, तद विषये, उसके बारे में, वो पॉट के बारे में, तद विषय, चिंतयन, सोचते सोचते, सह सुप्तः, वो सो जाता है. He slept just by thinking about that pot all the time. Below that pot itself, spreading a mat. Prasarya, spreading, katam, mat. Tasya adhastat, below that. Badhva, tied, rajva, by rope, nagadante, hook or nail. He tied that pot with the help of rope to the hook or to the nail. Okay, so we have seen the paragraph till Suptaha. We will stop here and we will continue with this story in the next lecture. Till then, just practice tables, Namani tables, as I said, which will be again helpful for your Samas. Thank you so much, everyone. Punar Milamaha.